Welcome to the Study IAS, friends. In this session, we are going to discuss the All India Simulator Test number 5 for Ethics, Integrity and Aptitude, paper 4 of General Studies, UPSC CSC. So, as you all know, we have conducted this All India Simulator Test series. For all of you are going to be present there in the mains examination of UPSC CSC 25. In this section, there are two parts. First is the conceptual part, which is asked from question number 1 to question number 7. And from question 7 onwards, there are certain concepts which are asked through the case studies, as you all know. So I'll start from question number 7, which is a case study, and then we'll come on to the part which is conceptual and which requires deep understanding of ethics. From question number 7, we'll try to cover all the conceptual part as well as the integrity and aptitude portion. So first I'll read you the portion from this case study and then we'll try to cover it, okay? I'll start reading. Okay. Ravindra Yadav, an honest and diligent civil servant in Maharashtra, is tasked with overseeing the implementation of Ladki Bahin scheme in a district marked by deep socio-economic disparities. As the scheme rolls out, Ravindra notices a surge in applications from women in relatively better off households with strong social networks, while the most marginalized women, those lacking proper documentation or digital literacy, struggle to access the benefits. He also becomes aware of local political pressure to expedite approvals in certain constituencies ahead of upcoming elections, raising concerns about the scheme being used as an electoral tool rather than a genuine welfare measure. Ravindra faces an ethical dilemma. Should he strictly adhere to the eligibility criteria and risk excluding vulnerable women due to procedural hurdles, or should he exercise discretion to ensure exclusivity, potentially inviting accusations of favorism or violating established protocols? The situation tests his integrity, probity in governance, and aptitude for problem solving, as he must balance the intent of empowering women with the practical challenges of exclusion, political interference, and responsible use of public funds. Now, as you all are aware that this session is going to be a bilingual session, which means I'll be reading your questions in English. I'll be explaining them to you in English as well as Hindi, because most of our students are from both the backgrounds. So, let's try to understand this question now in Hindi. Okay, first I'll complete this. What are the ethical issues involved in the above case? You might be knowing that this is the pattern UPSC asks all the questions in ethics case studies specifically. What options do you think are available to Ravindra Yadav in such a situation? If you were Ravindra Yadav's place, which option would you choose in such a situation and what would be your decision? तो आप जानते हैं कि इस केस स्टडी में आपसे क्या पूछा गया है. 2-3 तरीके के सवाल हैं. देखिए, एक रविंद्र यादव नाम की कोई व्यक्ति है, ऑनेस्ट आदमी है और अच्छे सिविल सर्वेंट है, लेकिन उनकी समस्या क्या है कि वो जहां पर पोस्टेड है उनको एक काम दिया गया है, एक ये योजना है लड़की बहन योजना. इसके तहत जिले में उनको क्या करना है कि जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं उनको काउंटर करते हुए, उनको देखते हुए इस स्कीम को रोल आउट करना है. अब वो क्या पाते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत जो बढ़ोतरी है एप्लीकेशंस में, वो उन महिलाओं की ज्यादा हो गई है जो बेटर ऑफ हाउस होल्ड से हैं, which means their economic and socio-economic position is well off than the other who need to be given this benefit. Strong background से हैं, social network अच्छा है, marginalized women है, और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका socio-economic background अच्छा नहीं है, they lack their documentation and they are not that digitally literate. So now there is an ethical problem. Should he just go with the flow and do the work as assigned to him, or he should indulge himself in the process and give the benefit of this scheme to those people who literally deserve it? उसके बाद देखिए, he also becomes aware of the लोकल पॉलिटिकल प्रेशर. बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर आता है और इसको एज अ टूल भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें उन तबकों को ज्यादा सहयोग दिया जाए जो शायद मार्जिनलाइज्ड भले ही ना हो, लेकिन लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट जिनको मिला हुआ हो.
अब इसमें एथिकल डायलेमा वही है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है एक योजना को लागू करना, उसे वो योजना उन लोगों को देनी चाहिए जिन लोगों को ये वाकई सरकार देना चाहती है, या उन लोगों को दी जानी चाहिए जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस अच्छे हैं, जो डिजिटली लिटरेट हैं। ये एथिकल डिलेमा है इसमें। आगे आप देखेंगे तो ये दो ऑप्शंस उसने दिए हैं कि स्ट्रिक्टली अडेयर करें और वल्नरेबल वुमेन जो है वो उनको बाहर कर दें प्रोसीजर से। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि जो प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड है उसको तो वो वायलेट नहीं करेंगे, योजना को तो लागू कर देंगे, लेकिन उनके मन में एक डिलेमा बना रहेगा कि इसका लाभ उन लोगों को नहीं मिला जिसको दरअसल मिलना चाहिए था। ऐसी सिचुएशन में उसकी इंटेग्रिटी का टेस्ट है और गवर्नेंस में वो कितना अच्छा है इसका टेस्ट है। साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग का एप्टीट्यूड भी टेस्ट किया जा रहा है, क्या उसे एक बैलेंस्ड इंटेंट के साथ जाना चाहिए कि वुमेन को एम्पावर करना है, या उसको उस तरीके की वो प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए जो एप्लीकेशंस उसके पास आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को निकालता रहे। प्रैक्टिकल चैलेंज ऑफ एक्सक्लूशन है, साथ ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है और रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक फंड्स का यूज करने की। ये जब केस स्टडी आपके सामने आएगी तो इसमें से पहला सवाल ये है कि व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द अबव केस। ऐसे में रविंद्र यादव के सामने कौन कौन से एथिकल डिलेमास है उनको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। आप आगे चलेंगे तो हम यहाँ पर इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, है ना, और उसके सामने जो भी एथिकल चैलेंजेस हैं उनको एक एक करके हम समझते हैं। पहला एथिकल चैलेंज क्या है? पहला एथिकल चैलेंज है इक्विटी वर्सेस प्रोसीजरल रिजिडिटी। इक्विटी वर्सेस प्रोसीजरल रिजिडिटी। आप जानते हैं कि समानता क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है। एक व्यक्ति अगर मान लीजिए, एक वो बहुत फेमस तस्वीर है जिसके जरिए हम इस कंसेप्ट को समझाते भी हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दीवार है, इस दीवार के पीछे तीन लोग खड़े हैं, एक बहुत लंबा है वो भी उसको नहीं देख पा रहा है, एक उससे छोटा है और एक सबसे छोटा है। ये तीनों लोग नहीं देख पा रहे हैं कि दीवार के पार क्या है। लेकिन अगर आप कहें कि समानता हमें इन लोगों में लानी है, समानता और समता का मतलब समझिएगा, यहाँ पे इक्विटी और इक्वालिटी का अर्थ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस कंसेप्ट के जरिए कि ये दीवार है और तीनों लोग इस दीवार के पार नहीं देख पा रहे हैं। तो आप एज गवर्नमेंट क्या करते हैं कि तीनों लोगों को समान अधिकार दे देते हैं। समान अधिकार में क्या होगा? मान लीजिए एक की हाइट 6 फीट है, एक की हाइट 4 फीट है, एक की हाइट 3 फीट है, तो आप क्या कहोगे कि, और ये दीवार मान लीजिए 8 फीट की है, आपने क्या कहा कि हर व्यक्ति को 3 फीट का हम एक स्टैंड दे देंगे जिसके ऊपर खड़े होकर के वो दीवार के पार जो भी हो रहा है उसको देख पाएंगे। तो आपने यहां इसको अगर 3 फीट दे दिया तो ये दीवार के पार देख पाएगा, इसको दिया तो नहीं देख पाएगा, इसको दिया तो नहीं देख पाएगा। नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट इक्विटी, व्हाट इज इक्विटी? कि हर व्यक्ति को उतना दे दो जितने की उसको आवश्यकता है, ना उससे कम दो ना उससे ज्यादा दो, ये उसकी समता हो जाएगी। और समता का कंसेप्ट ही है कि समाज में हर व्यक्ति जो आगे है पीछे है उसको आपने बराबर करना है। बराबर ये नहीं कि जो बड़ा है उसको कम कर दो, बड़ा है वो बड़ा है, उसको कुछ अधिकार ना दे तो चलेगा, उसका जीवन अच्छा चलेगा, लेकिन जिसके पास अधिकार नहीं है उसको अगर आप देंगे तो उसका जीवन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो ये जो वॉल एग्जाम्पल है इसमें हम क्या करते हैं कि जनरली सबको बराबर देते हैं। मान लीजिए 8 फीट की दीवार है तो 6 फीट वाले को 3 फीट दिया तो वो देख पाएगा, 4 फीट वाले को 5 फीट का देना पड़ेगा और 3 फीट वाले को 6 फीट का देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? इससे समाज में समता आती है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। तो द फर्स्ट क्वेश्चन that we are tackling, what are the ethical issues involved in this case? The first ethical issue is कि क्या आप हर व्यक्ति को उतना ही दोगे जितना सरकार कहती है, या आप हर व्यक्ति को उतना दोगे जितने की उसको आवश्यकता है। अब इसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार ने तो ये कहा है कि चाहे कोई डिजिटली लिटरेट हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, या जो व्यक्ति वेल ऑफ है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, वो लोग लाभ उठाते हैं अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का और इस योजना का लाभ ले जाते हैं। अब सरकार को या रविंद्र यादव को एज एन एग्जांपल, एज ए डीएम वटेवर जो भी वो भी है, एक सिविल सर्वेंट के नाते उसको क्या करना चाहिए? अपनी इक्विटी और प्रोसीजरल रिजिडिटी के बीच में उसको तय करना है। तो जो पहला एथिकल डिलेमा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए ना, यहाँ जो है एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं, तो पहला एथिकल इश्यूज है इक्विटी वर्सेस प्रोसीजरल रिजिडिटी, कि वो क्या बना के रखे। दूसरा आता है इंटेग्रिटी वर्सेस प्रोबिटी। अगेन वही कि क्या वो बहुत रिजिड हो जाए, क्या उन लोगों को स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर कर दे जो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस यूज करके आए हैं, और डिजिटल लिटरेट जो महिलाएं नहीं हैं और जो वेल ऑफ भी नहीं है उनके लिए वो क्या कर सकता है। यहाँ उनकी इंटेग्रिटी दिखेगी और प्रोबिटी का हमें एग्जाम्पल दिखता है।
फिर थर्ड उसके सामने एथिकल डिलेमा जो है या एथिकल इशू है वो है फेयरनेस वर्सेस डिस्क्रिमिनेशन। ये इशू है, यहां आप देखिए फेयरनेस वर्सेस डिस्क्रिमिनेशन, कि आप फेयर रहना चाहते हैं हर उस आदमी के लिए जिसके लिए ये योजना है, लेकिन वहीं दूसरा समस्या आती है कि जब आप उन्हें वो योजना का लाभ नहीं देंगे तो इट विल कम अंडर नॉन फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दोज women फॉर whom this scheme has been designed, and if people for whom this scheme is designed, if they are not getting the benefits of the scheme, then it is none of our use or none of Ravindra Yadav's use. So this is an ethical dilemma or ethical issue you can call it. Now उसके बाद आप देखिए अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का इशू है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स व्हाट एंड ट्रांसपेरेंसी मीन्स व्हाट। अगर आपको किसी काम का जिम्मा दिया गया है और आप उस काम में पूरी लगन के साथ मेहनत के साथ उसको नहीं करते हैं तो ये एक अकाउंटेबिलिटी का इशू बनता है कि क्या आप उस जॉब के लिए सूटेबल भी हैं या नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप उस काम को पारदर्शिता के साथ नहीं करते हैं कि किसे लाभ मिल रहा है किसे नहीं मिल रहा है, इफ एवरीथिंग इज डिसाइडेड बिहाइंड द बार्स और बिहाइंड द क्लोज डोर्स, देन देयर इज एन एथिकल इशू इन इट। आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं तो आपको लोगों के सामने रहना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया है। आप बिहाइंड क्लोज डोर्स कोई काम नहीं कर सकते। अगला जो एथिकल इशू है वो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इशू विल अराइज एवरीवेयर। जहां जहां आप काम कर रहे हैं वहां वहां ये इशू रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल बैकिंग से आप शायद पॉलिटिकल क्लास के और ज़्यादा नज़दीक जा सकते हैं। अगर आप नॉन डिजर्विंग लोगों को उन सुविधाओं का लाभ देंगे जो जो वो डिजर्व ही नहीं करते हैं, तो उनके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं दे विल बी हैप्पी, और जो उनका वोटर ग्रुप है वो भी उनसे खुश रहेगा, और हो सकता है भविष्य में वो आपको कुछ अतिरिक्त अधिकार भी दे दें, अतिरिक्त कार्य भी दे दें। लेकिन इससे समाज का क्या नुकसान होगा कि जिन लोगों को ये मिलना चाहिए था, जो लोग डिजर्विंग थे, उनको नहीं मिला। तो आपने एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं किया। ये एथिकल डिलेमा, ये एथिकल इशू आपके साथ हमेशा रहेगा। उसके बाद जो दूसरा सवाल इसमें है, व्हाट ऑप्शंस डू यू थिंक आर अवेलेबल टू रविंद्र यादव इन सच अ सिचुएशन। क्या करना चाहिए अब रविंद्र यादव को, ऐसी सिचुएशन उसके सामने आ गई, कोई भी XYZ हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला, स्ट्रिक्टली अडहेयर टू द एथिकल गाइडलाइन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहले तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे अडहेयर करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी इंटेग्रिटी दिखेगी कि आप अपने काम के प्रति कितने सीरियस हैं। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं ई श्रीधरन का। ई श्रीधरन ने क्या किया था, ही इज नेम्ड एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। तो जब वो मेट्रो का निर्माण कर रहे थे तो आपको क्या लगता है कि उनके सामने ऐसे इश्यूज नहीं आए होंगे जहां पर उनको जो प्राइवेट टेंडर्स थे वो अलॉट करने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर आया हो? बिल्कुल आया होगा। उनको मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कई बार प्रश्न खड़े किए गए होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो स्ट्रिक्टली अडेयर किए किस पर? अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर। रविंद्र यादव को भी यही करना चाहिए। फिर हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो अगर आप इसमें प्रोज लिखेंगे और कॉन्स लिखेंगे तो प्रोज क्या हो सकते हैं? प्रोज तो यही हो सकते हैं कि जिनको लाभ मिल रहा है वो मिल जाएगा, बट कॉन्स क्या हो सकते हैं? कॉन्स ये हो सकते हैं कि वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स का फेथ खो सकते हैं, और अगर भविष्य में उनके पॉलिटिकल मास्टर्स बिकम द इंचार्ज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट तो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, बट दैट इज एब्सोल्युटली ओके। किसी भी संगठन में काम करते हुए एज अ सिविल सर्वेंट इंटेग्रिटी पहली चीज होती है जिसका आपको ध्यान रखना है। रेस्ट एवरीथिंग इज नॉट मैंडेटरी। फिर उसके बाद क्या कर सकता है? डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकता है और इंक्लूसिविटी बढ़ सकती है उससे। डिस्क्रिशन में क्या होगा, जैसे एक ऐसी पावर होती है हर सिविल सर्वेंट के पास, डिस्क्रिशनरी पावर, इसीलिए आपको इतनी रिजिड प्रोसेस से सिलेक्ट किया जाता है, आप उतनी रिजिड प्रोसेस से एग्जाम देते हो। वो डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? अगर वो उसको यूटिलाइज करते हैं तो वो कुछ ऐसे प्रोविजंस भी तो कर सकते हैं कि अपनी टीम जिले में छोड़ दें, और जो गरीब महिलाएं हैं, जो वेल ऑफ नहीं है, जिनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, वो आकर के वहां अपने फॉर्म फिल कर सकें, अपने बारे में ज्यादा जानकारी दे सके और अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन भी सबमिट कर सके। तो ऐसा रविंद्र यादव के पास ऑप्शन है। फिर क्या हो सकता है? आउटरीच, जिसको हम कहते हैं, आउटरीच कर सकते हैं। और दूसरा, सिस्टमेटिक रिफॉर्म कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स इन प्रोसीजर्स जहां पर
आपको ये बार बार ये कहा जाता है कि आपको आउटरीच नहीं करना है। आपको आउटरीच करने को क्यों मना किया जाता है? क्योंकि इसमें ऐसा दिखता है कि शायद आप इंटीग्रल नहीं हो या शायद सिस्टम के बाकी लोग आपसे मिले हों, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। अगर आपको सिस्टमेटिकली काम करना है तो आपको अपने सीनियर्स को, सुपीरियर्स को अपने लूप में रखना होगा, ठीक है। फिर देखो तीसरा फोर्थ पॉइंट जो हम इस क्वेश्चन का कर रहे हैं, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो फोर्थ पॉइंट में आप क्या कह सकते हैं कि ऐसे में रविंद्र यादव को पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ भी मिलना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो इंटरफेयर कर रहे हैं इसमें, अगर वो उनसे मिलेंगे, बात करेंगे तो अपनी बात को अच्छे से कह पाएंगे। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, हो सकता है उसकी बात मान ले, हो सकता है वो बात ना माने। अगर मान लिया तो बेहतर है, और नहीं माना तो शायद एक पॉलिटिकल राइवलरी उनके आसपास पैदा हो जाएगी। फिर देयर इज नेक्स्ट सी, if you were in Ravindra's place, which option would you choose in such a situation and what would be your decision? So what would you do? Now that the 5 points that I've given you, you can do all of the 5. Adhere to the integrity and discretionary measures, outreach and political support from the political classes or your political boss. Okay, so all these 5 things you can do, but there are other certain things that are also possible in this case. First one being outreach program. This is main. Outreach not to the higher positions or higher managers, but outreach to the people, because you have the discretionary power. Reach out to people, ask them to fill the forms, ask them for their details if they are not literate enough digitally to do this process on their own. Then streamline the procedures. And what does this mean, streamlining the procedure? क्योंकि सबको आना पड़ेगा एक ना एक दिन, तो फॉर्म तो कोई फिल करेंगे ही। तो जब वो फॉर्म फिल करें तो उसके लिए एक ऐसा प्रोसेस हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, आपको एक काउंटर पर आकर के फॉर्म जमा कराना पड़े। ऐसे में क्या होगा, ऐसे से होगा ये कि आपकी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और अलग अलग तरीके से जो स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। देन रेजिस्ट पॉलिटिकल प्रेशर। इफ आई वर रविंद्र यादव, I would resist this political pressure and try to persuade them that please do not do this. This is a program for the betterment of the socio-economic development of the women. If you would do that, then your area will always be behind than the rest of the nation. I am working towards betterment of this district. Please let me do this. Now the fourth is evaluate and monitor. If you are the in charge, you have the sole responsibility to do anything in your district related to this scheme. So if you will ask your superior bosses or to the people on the ground that are called the foot soldiers, they will not let this happen, because administration works in line with the political class, not against it. So they will understand this and let you do your work. So these all things you can do. Moving towards our next case study, it is very long when I read it, so I'll just highlight the major points here for you and then we'll see, I'll let you understand this. Okay, एक ट्रैफिक कांस्टेबल हैं, अपनी ड्यूटी पर हैं, और जब वो अपनी ड्यूटी पर होते हैं तो वो देखते हैं कि कार जो है वो बहुत ओवर स्पीडिंग से जा रही होती है। उस ओवर स्पीडिंग कार को देख करके जब वो उसे चेज करते हैं तो पाते हैं कि उसने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया है। रेड लाइट को क्रॉस करते ही जब वो रुकवाते हैं उस गाड़ी को तो पाते हैं कि एक महिला है, अपने बच्चे के साथ है, उसके बच्चे को शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए वो गाड़ी को भगा रही है। अब विमेन एक्सप्लेन करती है कि डिफ़िकल्टी हो रही थी उसको ब्रीथ करने में, इसलिए उन्होंने गाड़ी तेज़ चलाई और एम्बुलेंस उनको मिल नहीं रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद वो पाते हैं कि नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचा करके कि ड्राइवर लाइसेंस भी उनके पास नहीं है, साथ ही उनकी कार का रजिस्ट्रेशन भी समाप्त हो गया है और उन्होंने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाया है। अब आपके सामने एक समस्या आ गई कि एक महिला है जिसने रेड लाइट क्रॉस की, उसका बच्चा बीमार है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं और कार का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, बट शी इज इन अ प्रॉब्लम। नाउ अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन को देखते हुए आपने स्ट्रिक्ट एक्शन चाहते हैं आप निश्चित तौर पर, लेकिन क्लोजली जब मॉनिटर करते हैं तो पाते हैं कि कुछ समस्याएं वाकई हैं उस महिला के साथ भी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपके सामने एथिकल डिलेमा आ गया कि किसी मजबूरी में, मुसीबत में फंसे व्यक्ति की आपको मदद करनी है या आपको अपने कानून देखना है। एथिकल डिलेमा है, इसमें बताना है व्हाट एथिकल इश्यूज आर इन्वॉल्वड इन दिस सिचुएशन, what options do you have for addressing it, also suggest what action would you take in such a situation. I hope you understood the question कि एक महिला है जिसने रेड लाइट क्रॉस की है,
उसको एक समस्या है उसके बच्चे के साथ, उसकी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप प्रोसेस के साथ स्टिक करोगे या उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर छोड़ दोगे? पहले तो इसमें पूछा है कि आपके सामने एथिकल डिलेमास कौन कौन से हैं। तो पहला तो है कि प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन लाइफ वर्सेस वेल बीइंग। पहला तो एथिकल डिलेमा यही हो गया कि आप उसकी मदद करोगे, और मदद नहीं करोगे तो क्या आप उसको सजा दोगे, क्योंकि उसका बच्चा बीमार है और आपका बच्चा बीमार होता तो ऐसे सिचुएशन में आप भी यही करते। तो डिलेमा तो है निश्चित तौर पर, नो डाउट। दूसरा है लीगल ऑब्लिगेशंस को और कंपैशन को बैलेंस आपने करना है कि किसी महिला को यह भी ना लगे कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है और आपका कानून भी बच जाए। ये एथिकल डिलेमा आपके बीच में हमेशा रहेगा। फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी आपको कंसिडर करनी है। ऑल्दो शी इज ड्राइविंग अ कार, बट उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये एथिकल डिलेमा आपके अंदर रहेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करेंगे तो शायद आप सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति को तंग किया है जो शायद उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था और आपने कानून की ज़बरदस्ती उसके ऊपर दिखाई है। देन मेंटेनिंग पब्लिक लॉ एंड इन्फोर्समेंट, चाहे कुछ भी हो उन्होंने कानून तो तोड़ा है, तो कानून तोड़ने की सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए। ये भी एथिकल डिलेमा आपके यहाँ रहा। अब आप क्या करेंगे? अभी कह रहे हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो हम एक बार ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप क्या करें कि आप स्ट्रिक्टली अपने कानून को लागू करते हैं। बट if you apply this law very strictly, then what will you do? All the 4 or 5 ethical problems that I already suggested you, these will be your main hurdles while you go through this situation. Second is humanitarian assistance. आप इसमें क्या कर सकते हैं कि या तो स्ट्रिक्टली कानून को लागू कर दें, आप चालान कर दें, उनको बिहाइंड द बार भेज दें, उनके बच्चे को मर जाने दें, ये तो कानून का इन्फोर्समेंट हो गया। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आप उनको दे सकते हैं। यू कैन अरेंज एम्बुलेंस फॉर हर और यू कैन डू अदर थिंग्स। थर्ड इज कॉम्प्रोमाइज द अप्रोच। कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच क्या होगी कि आप उनको जाने दें और ये कहें कि चलिए कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, आप चली जाइए। फोर्थ क्या हो सकता है कि आप इसको रिपोर्ट कर दें और अपने सीनियर्स को रेफर कर दें। लेकिन इससे होगा क्या? इससे आपका एक वैसा पक्ष दिखेगा कि आप एक अच्छे प्रशासक नहीं हैं। तो अगर आपको इन चारों एथिकल ऑप्शंस में से कोई अच्छा नहीं लग रहा और ये अगर आपके एथिकल डिलेमाज हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है लास्ट का कि व्हाट एक्शन वुड यू टेक इन दिस सिचुएशन, कि आप क्या करोगे और क्या आपको करना चाहिए। सो लेट्स सॉल्व दिस। फर्स्ट, व्हाट वुड यू डू? There are certain layers of your response. The first is immediate response, that we call it. What would be your immediate response? Firstly, you will take his son to some hospital. Secondly, what you can do, documentation. You will prepare a valid record of the situation, whatever happened, what she did and what was her condition, and then you will take the follow up for that and report to superiors. That is the best approach that you can take. आप पहले पूरा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। सबसे पहला आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कि अगर कोई महिला परेशानी में है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आप उनको इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या करेंगे कि उनकी मदद करेंगे। दूसरा, आप उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उस पर फॉलोअप लेंगे और लास्ट में आप उसको अपने सुपीरियर्स को सबमिट कर सकते हैं। दैट इज अ बेटर अप्रोच एंड आस्क योर सुपीरियर्स to be pardoning on that person, specifically she is a woman, so उनको थोड़ा सा आप मदद कर सकते हैं on humanitarian grounds। ये अप्रोच है। बाकी स्ट्रिक्ट अप्रोचेस बहुत नहीं लेनी है। एथिकल डिलेमास में जब हम होते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट अप्रोच कई लोग ले लेते हैं बिकॉज दे थिंक ऑन देयर बेसिस, कि जैसे वो हैं वो फैसला करते हैं। कई लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो कहेंगे कि नहीं, हम तो उसका चालान कर देंगे, उसको जेल के अंदर डाल देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सेकंड, व्हाट वुड दे डू, वो कहेंगे कि नहीं हम छोड़ देंगे, हम थोड़े से उदार हृदय वाले हैं तो इसलिए छोड़ देना चाहिए। बोथ आर रॉन्ग अप्रोचेस। दोनों ही में से आपको कुछ नहीं करना है। आपको कानून भी लागू करना है क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, छोड़ नहीं सकते। अगर ऐसे ही छोड़ना होता तो आपकी जगह किसी भी व्यक्ति को बैठा दिया जाता, फिर कोई फायदा नहीं होता आपके रहने ना रहने का। और अगर आप उसको सजा देंगे तो वो तो फिर बाय द लॉ आप कैमरा लगा करके भी कर सकते हैं। इसीलिए तो ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है कि वो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ फैसला कर सकें, जिसमें कानून भी लागू हो जाए और व्यक्ति की ह्यूमैनिटेरियन मदद भी हो जाए। उसी एथिकल डिलेमा के ऊपर ये केस स्टडी है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर 9th क्वेश्चन। As the newly appointed district collector of Alirajpur,
Shubhra was immediately confronted with harsh realities of the religion. Alirajpur is a remote district which is inhabited by a tribal population where there is extreme backwardness and poverty. Agriculture is their main whatever substance, and then small land holdings are there, and significant industrial and mining activity provide alternative livelihood. Despite there are welfare schemes which are running through, and the tribal population is there, seen a little improvement in their life, and they began to migrate to supplement their family income and living the community further strained. So Shubhra was disturbed by the plight of minor girls who are persuaded to labor contractors and go to the nearby BT cotton farms of the state. Their soft fingers of the minor girls are well suited for plucking cotton. But the inadequate living and working condition on this farm led to serious health issues. Now NGO of the Alirajpur are also compromised, and they are not working towards the betterment of these girls. And now the child labor and development has become a very big problem. Situation seems dire. There is systematic exploitation of the girls, and this cycle of poverty and hardship in Alirajpur continues. I hope you got the case study. There is a district collector, and that district collector is new to Alirajpur. And in Alirajpur, there is issue of tribal population, poverty, lack of development, and due to industrialization, and for the raw material of that industry, there are BT cotton farms, and minor girls of that region are suited for plucking cotton in that fields. अब समस्या क्या है कि उनको बचाना कैसे है? एनजीओ भी कॉम्प्रोमाइज्ड है. पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेरियस एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड. आपके सामने क्या इशू है और कौन से स्टेप शुभ्रा ले सकती है ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी करने के लिए. तो पहला क्वेश्चन है, एथिकल इश्यूज क्या क्या है. पहला एथिकल क्वेश्चन तो आपके सामने है कि चाइल्ड लेबर आपके सामने हो रहा है, वो आप देख नहीं सकते. चाइल्ड लेबर इज द फर्स्ट एथिकल इशू. सेकंड इज इनएडिक्वेट लेबर एंड वर्किंग कंडीशन. पहला तो है कि बच्चों से काम कराया जा रहा है. दूसरा है कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है लेकिन वर्किंग कंडीशन लोगों की बहुत अच्छी नहीं है. तीसरा है सिस्टमेटिक नेग्लिजेंस एंड पोवर्टी. सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है, इसलिए पोवर्टी हो रही है. और एनजीओज जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं. तो ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी तय करता है. तो इस जो हमारी ये केस स्टडी है, इसमें देयर आर 4 प्रॉब्लम्स मेजरली: चाइल्ड लेबर, पोवर्टी, वेलफेयर स्कीम्स का लोगों तक ना पहुंचना, सरकार का कम अकाउंटेबल होना, और एनजीओज के द्वारा भ्रष्टाचार. आपने 4 चीजें आइडेंटिफाई कर ली. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इट इज आस्किंग अस दैट व्हाट स्टेप्स कैन शुभ्रा टेक. सो देयर आर सर्टेन possibilities in front of Shubhra. First being strict implementation of child labor laws. आपके पास एक समस्या है कि बच्चों से काम कराया जा रहा है, आपके पास कानून है, आप जिला अधिकारी हैं, आप उन कानूनों को स्ट्रिक्टली लागू कीजिए विदाउट एनी प्रेशर, चाहे जो हो जाए. यह आपकी एथिकल समस्या को दूर कर देगा. सेकंड, एजुकेशन के ऊपर काम करना और बेसिक नेसेसिटी के ऊपर काम करना. बेसिक नेसेसिटी एज इन क्या? स्वास्थ्य, जल, घर, खाना. These are your basic necessities. So if you provide for them and later care for their education, they'll be in a better position. खास करके जो लड़कियां हैं. फिर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड अवेयरनेस. उनको बताना कि ये आपके लिए गलत है, इस प्रकार का कोई भी कार्य आपके बच्चे के भविष्य को अंधकार में धकेल सकता है. तो अगर उनके लिए और ज्यादा जागरूक हम हो जाएं तो ये समस्या हमारी दूर हो सकती है. देन देयर इज एंगेजमेंट ऑफ एनजीओज. एनजीओज को क्या कर सकते हैं? एनजीओज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है. उनको उस एरिया में काम करने से आप रोक भी सकते हैं और सरकार को या अपने सुपीरियर्स को ये बात बता भी सकते हैं. ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. साथ ही आपने कहा कि वहां पर पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी को कैसे कम करेंगे, क्या कर सकते हैं? अल्टरनेट स्कीम्स भी होती हैं, खास करके जैसे नरेगा है ना. उसके अलावा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है बहुत सारे. उनमें आप इन लोगों को एनरोल करा सकते हैं, काम दिला सकते हैं, जिससे पॉवर्टी की समस्या खत्म हो जाए और उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े. अभी ये जो इफेक्टिव स्कीम्स हैं, ये जो भी जितने भी हमने बात की, इनको लागू कैसे करेंगे? पंचायती राज सिस्टम के जरिए, क्योंकि वहां आपको पूरा मैकेनिज्म मिल जाएगा. वो लोग सरकार के तरीके से काम करते हैं एंड दे विल बेटर अंडरस्टैंड योर पोजीशन, क्योंकि वो भी अपने सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं. तो अगर आप उसमें फ्रंट रनर होगे तो आपको मदद वो लोग करेंगे. नाउ दिस इज
our next case study, number 10. We try to do it a little quicker, है ना। रविकर शांडिल्य नाम के एक आदमी हैं, वो ग्राम प्रधान के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं और उन्हीं फैमिलीज को फेवर करते हैं जो उन्हें इलेक्शन में मदद करते हैं। साथ ही पुअर और नीडी फैमिलीज भी वहां पर हैं जिनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो रही हैं और पंचायती मीटिंग्स में उनका पक्ष भी नहीं सुना जाता है। रविकर जो है वो ओपनली ग्राम प्रधान को सपोर्ट करते हैं, साथ ही इग्नोर करते हैं बाकी पंचायत मेंबर्स की बात को। यहाँ से उनकी इम्पार्शियलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी पर सवाल उठना स्टार्ट हो जाता है। पंचायत जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गांव की समस्याओं को दूर करती है, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ाने की बजाय फेवरेटिज्म का एक हब बन गया है और डिस्क्रिमिनेशन वहां पर होता है। रविकर ने डाउट सेशंस कंडक्ट ना करने का और पर्सनल एथिक्स पर काम ना करने का और डेमोक्रेसी की ग्रास रूट को कमजोर करने का फैसला ले लिया है। ये हमारी केस स्टडी है। अब इसमें आइए, पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द एथिकल क्वेश्चंस इन्वॉल्वड इन द अबव केस। अब ये जो रवि है ये क्या कर रहे हैं, ये एक तो इम्पार्शियल है, लोगों को बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं, प्लस ये फेयर नहीं है, साथ ही करप्शन कर रहे हैं और पावर का मिसयूज कर रहे हैं और इनकी अकाउंटेबिलिटी और इंटेग्रिटी जीरो है। साथ ही ये अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ भी समझौता कर रहे हैं। आप समझ गए? इतनी चीजें, 4 चीजें, 5 चीजें आप लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा जो है एस्टैब्लिश फेयरनेस अब हाँ, दूसरा है कि ऑप्शंस अवेलेबल क्या क्या है इनके पास। अब चलिए, ग्राम प्रधान का फेवर करते हैं, उन फैमिलीज को फेवर करते हैं जिनसे प्रधान को वोट्स मिलते हैं, बाकी मेंबर्स को उतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन इनके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। ऑप्शंस अवेलेबल है, गाइडलाइंस के साथ अडेयर करें, जो गाइडलाइंस दी गई है उनको फॉलो करें, साथ ही एंगेज अदर पंचायत मेंबर्स जिनको नहीं किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए, साथ ही हायर गाइडेंस सीख कर सकते हैं, कम्युनिटी को एजुकेट कर सकते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर को नो कह सकते हैं और इश्यू को एस्केलेट कर सकते हैं अपने सुपीरियर्स को। ये उनके पास ऑप्शंस हैं। साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द वेरियस ऑप्शंस एंड टेल स्टेप्स व्हाट यू हैव टेकन अबाउट सिचुएशन एस्टैब्लिश फेयरनेस। अब आप क्या करते अगर ऐसी सिचुएशन में होते तो वही आप करते जो हमने अभी यहाँ पर रेकमेंड किया है। सबसे पहला तो न्यूट्रलिटी बना करके रखते किसी। अब देखिए, इनमें जो एग्जांपल्स है ना, वो आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति के लिए एक एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ लेसन्स, लाइफ एग्जाम्पल्स, उसके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो जहां से आपको जो एग्जाम्पल मिले, अच्छा लगे, न्यूट्रलिटी को दिखाने के लिए वो आपने लिखे भी होंगे अपने नोट्स के दौरान कि अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी आदि के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो देखिए, न्यूट्रलिटी जो है वो अलग अलग, जो जहां से भी आपको एग्जाम्पल लगे वहां से ले लीजिए। दूसरा, पंचायत प्रोसेसेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। आप बताएं कि पंचायत प्रधान के इन्फ्लुएंस में नहीं चल सकती। हाँ, ही इज द फर्स्ट वन अमंग द इक्वल्स, लेकिन वो सर्वा नहीं है इसके। साथ ही फिर अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एंगेज करें, एम्पावर करें कम्युनिटी को और मॉनिटर करें और रिपोर्ट भेजें अपने सुपीरियर्स को। ये उनके एथिकल डिलेमास को भी पूरा कर देगी। ऐसी सिचुएशन में उनके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको भी बता देगी और साथ ही आप क्या करते इस सिचुएशन में, उसका जवाब आपको मिला। फिर देखिए, 11 नंबर का सवाल है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। एक व्यक्ति हैं जो कि मार्केटिंग हेड है, किसके? डिफेंस प्रोडक्शन एक कंपनी करती है उसके। तो एक व्यक्ति प्रशांत है, प्रशांत को क्या समस्या आ रही है कि उनकी कंपनी की सेल्स जो है वो कम हो गई है। साथ ही पास्ट 2 ईयर्स में हर क्वार्टर में उनकी सेल्स गिरती जा रही है और उनका रेवेन्यू भी कम होता जा रहा है। ठीक है, अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो उन्हें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से उन्हें मिलना है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, शायद उनको सस्टेनेबिलिटी की भी समस्या आए। ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू के दौरान उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बात कह दी है कि अगर रिजल्ट ऐसे ही कमजोर रहा और सेल्स नहीं बढ़ी तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब चूंकि प्रशांत अपने घर में कमाने वाले इकलौते हैं तो उनके ऊपर यह समस्या है कि अपनी नौकरी भी बचानी है और साथ ही कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। अब इतने में होता क्या है कि प्रशांत का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि आशुतोष नाम का एक कैंडिडेट आया है जो ये कहता है कि उसका क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, साथ ही डिफेंस मिनिस्टर ने उसे रेकमेंड भी किया है। उसके अलावा उसके पास बिड डॉक्यूमेंट्स भी हैं सामने वाली कंपनी के। अगर वो उन्हें खरीद लेता है और खरीदने के बदले अगर आशुतोष को नौकरी दे देता है तो इससे प्रशांत की कंपनी टेंडर भी जीत सकती है, उसकी सेल्स भी बढ़ जाएगी और सामने वाली कंपनी को ध्वस्त भी वो लोग कर देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, आउटबिड कर सकते हैं
और इससे प्रशांत की नौकरी भी बच जाएगी, साथ ही उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और उसकी कंपनी भी अच्छा काम करने लग जाएगी। अब उसके सामने 2-3 चैलेंजेस हैं। पहला सवाल हमसे पूछा है कि डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस। व्हाट आर द एथिकल इश्यूज? अगर प्रशांत आशुतोष से डॉक्यूमेंट्स ले लेता है बिडिंग के, जो डिफेंस मिनिस्ट्री करवाने वाली है, तो उसकी नौकरी बचेगी, लेकिन उसके सामने एथिकल डिलेमास बहुत सारे होंगे। सबसे पहला कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को आप लेकर के आ रहे हैं जो आपकी राइवल कंपनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहा है। दूसरा इशू उसके सामने होगा ब्राइबरी, कि अगर मान लो आपने उससे डॉक्यूमेंट्स लिए तो एक किस्म की रिश्वत हो गई कि आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के किसी को नौकरी दे दी क्योंकि आप उस पद पर थे जहां आप कुछ दे सकते थे। ये एक समस्या हुई। उसके बाद क्या होगा? प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, कि आप इंटीग्रल नहीं हो, सत्यनिष्ठ नहीं हो, आपको जैसे भी काम करवाना पड़ेगा इनके इन प्रकारेण आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाओगे। उसके बाद पर्सनल गेन, क्या आपने कंपनी का फायदा उठाया है अपनी पर्सनल रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए, यह भी इंटेग्रिटी का परिचायक नहीं है। फिर अगले हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, यहां ये पूछा है ना कि क्रिटिकली एग्जामिन द ऑप्शंस अवेलेबल टू प्रशांत इन दिस सिचुएशन, और लास्ट में हम क्या फैसला लेते और क्यों। सो विल डिस्कस बोथ द पॉइंट्स, व्हाट आर द एथिकल डिलेमास दैट वी हैव जस्ट डिस्कस, नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है? या तो वो मना कर देगा, he'll say नो, या he'll say yes, या वो अपने मैनेजमेंट को बता देगा। ठीक है, पहला तो ऑफर ले लेगा कि हाँ ठीक आप दे दो, मेरे सारे काम इससे हल हो रहे हैं, लेकिन इससे समस्या क्या है? वही एथिकल डिलेमा वाली। अगर वो ना कहता है तो इससे उसकी नौकरी जाएगी, दूसरे को भी नहीं मिलेगी, और वो व्यक्ति जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं और जाएगा इनको लेकर के, शायद वो कंपनी खरीद ले। तीसरा है कि वो अपने अल्टरनेट सीख करेगा और अपने सुपीरियर्स को बता देगा, खास करके जो ओनर है इस कंपनी के उनको शायद बता दे और वो एक फैसला ले। लेकिन इसमें हुआ क्या फिर? अगर वो किसी और को बताएंगे तो इससे हमें लगेगा कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई फैसला कर ही नहीं पाते। तो जो फैसला नहीं कर पाता वो क्या प्रशासक बनेगा, है ना? अब इसमें पूछ रहा है कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, आप क्या करते? तो आप क्या करते इसमें बताइए। ये जो क्वेश्चन है, विच ऑप्शन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रशांत एंड वाई, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे प्रशांत के लिए अच्छा है। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप रिजेक्ट कर दो ऑफर को और उस आदमी को रिपोर्ट करो अपनी हायर अथॉरिटीज को कि ये मेरे पास ऐसे ऑफर लेकर के आ रहा है। इससे क्या होगा? इंटेग्रिटी भी बनी रहेगी और वर्क कल्चर भी बना रहेगा, आपके काम में फेयरनेस भी दिखेगी। ठीक है, शायद बहुत सारे लोग इसको यस कहते और बहुत सारे लोगों ने किया भी है यस, कि हम तो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते जो कि एक इमेजिनरी सिनारियो है, तो अगर आपको रियल लाइफ में कोई ऐसा सिनारियो मिलता जहां पर आपको अपनी नौकरी बचाने के बदले ब्राइब लेने या किसी राइवल कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए कुछ गलत काम करने में झिझक नहीं होती, तो आप एक कैसे सिविल सर्वेंट बनेंगे? तो इंटेग्रिटी का टोटल मतलब ये है कि आप इंटीग्रल हो जाएं, आप सत्यनिष्ठ हो जाएं, आपके अंदर काम करने की क्षमता, साथ ही उसको आपकी शक्ति को प्रयोग करने की ताकत भी आपके अंदर आए। तो ये जो इंटेग्रिटी है इसलिए नहीं कहते कि आप यहाँ पर यस बोल के आए, आप इसको रिजेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि हम उसको पकड़ेंगे, रिपोर्ट करेंगे और वहां से रिजेक्ट करके भगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट, एक कंपनी है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, अजीत उसके सीईओ हैं, लेकिन उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि बाई मंथली ओपन मीटिंग जो होती हैं फंक्शनल हेड के साथ, उनमें एम्प्लॉयज की कंसर्न्स को नहीं सुना जाता, साथ ही सेशन ट्रिवियल और रिपीटेटिव कंप्लेंट के द्वारा ज्यादा चलता है। अजीत ने अटेम्प्ट भी किया कि चीयरफुल माहौल बना रहे, साथ ही उन्होंने प्रोसीडिंग्स को और ज्यादा अच्छा करने के ऊपर भी सवाल उठाए, लेकिन किसी भी मसले पर काम नहीं किया गया, लॉन्जेस, बाथरूम और क्रैश के ऊपर। साथ ही जो कंपनी थी उसके स्पेस कंस्ट्रेंट्स भी लगातार बने हुए थे। अब ये मीटिंग जो है वो टायरसम होती थी, रिचुअलिस्टिक होती थी और अनप्रोडक्टिव एंड एग्जॉस्टिंग होती थी। ना तो काम करने को दिया जाता था और ना ही उस मीटिंग से कुछ निकलता था। कर्मचारियों के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं किया जाता था। उसके अलावा अनप्रोडक्टिव, थकाने वाली, उबाऊ, बासी, अनप्रोडक्टिव और एग्जॉस्टिंग मीटिंग्स हो रही थी।
ये साइकिल बहुत दिनों तक चलता रहा, कोई भी जो ग्रीवेंस थे वो रिजॉल्व नहीं हुए, साथ ही एम्प्लॉयज़ का डिससेटिस्फैक्शन जारी रहा, लोग नाराज होते रहे और जो कंपनी की वर्किंग एनवायरनमेंट था वो भी उससे खराब हुआ, लोग छोड़ छोड़ करके जाने लगे। बाद में हमने क्या देखा कि उसका बिजनेस खराब हो गया, उसके ऑपरेशंस डिस्टरप्ट हो गए, इससे पूरे से उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई और जो कंपनी थी वो एक स्टेबल वर्क फोर्स नहीं बना पाई। और जब वर्क फोर्स स्टेबल नहीं होती तो आप नए एम्प्लॉयज़ भरते रहते हैं, उनको सिखाते रहते हैं, फिर वो छोड़ करके जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये एविडेंट हो गया। अब जो मीटिंग्स थी वो कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाना उनको चाहते थे, साथ ही एम्प्लॉयज़ की नीड्स और जो पॉजिटिव वर्क कल्चर है उसको बढ़ाना चाहते थे। अब देखो व्हाट आर ऑप्शंस अवेलेबल टू अजीत और उसको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। आप बताइए आप क्या करोगे कि जहां आप काम करते हो वहां पे मीटिंग्स पर मीटिंग्स होती रहती हैं, प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, लोग छोड़ करके जा रहे होते हैं, अच्छा वर्क कल्चर नहीं होता है, कर्मचारी की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में कंपनी को क्या करना चाहिए और ऐसे में अजीत को क्या करना चाहिए। अजीत क्या करता है, सीईओ है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि कंपनी का मालिक है, एक कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जैसे आप होते हैं ना जिला अधिकारी वैसे ही। तो अब उसके सामने कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो क्या कर सकता है और क्या उसको करना चाहिए सबसे उसके लिए अच्छा जो रहे। तो देखिए पहला ऑप्शन तो उसके बाद है कि रिवैम्प कर दे पूरे प्रोसेस को, पूरी तरीके से बदल के रख दे और वही करे जो कर्मचारियों के लिए अच्छा हो, ना कि टायरसम और अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स। फिर अपने कर्मचारियों से एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर रखे कि मैं आपसे क्या चाहता हूं, आपको क्या करना है। साथ ही फंक्शनल हेड्स को एम्पावर करें कि वो कर्मचारियों की समस्याओं को दूर कर सकें। इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे एम्पावरिंग में आप एपीजे अब्दुल कलाम के एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके अलावा ओपन डोर पॉलिसी बना के रख सकता है रतन टाटा का, आप इसमें एग्जाम्पल रखिए। ठीक है, अगर आप होते तो आप क्या करते, आप वही करते जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला क्या कर सकते थे कि एम्प्लॉय कंसर्न्स को ज्यादा महत्व देना और सर्वे करवाना और ये ना बताना कि सर्वे में किस व्यक्ति ने क्या कहा, इससे आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की समस्याएं पता चल जाती। फिर फंक्शनल हेड्स के साथ काम करना और मीटिंग फॉर्मेट बनाना, छोटी मीटिंग्स रखना। थर्ड है चेंजेस को कम्युनिकेट करना और अपने एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखना अपने एम्प्लॉयज से। ये कार्य आप कर सकते थे। इससे होता क्या, वर्क कल्चर अच्छा होता, आपके एम्प्लॉयज खुश रहते कि हमारी बातें सुनी जाती हैं, एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनता, वो लोग और बेहतर तरीके से आपके लिए काम कर सकते थे। ठीक है, ताकि आप उनको कम से कम बताएं तो कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप उनको यही नहीं बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं तो वो आपके लिए काम कैसे करेंगे। ठीक है, साथ ही फीडबैक सिस्टम बनाएं, ओपन डोर पॉलिसी बनाएं और रेगुलेटरी रिव्यू लगातार करवाते रहें ताकि नई अप्रोच आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए। ठीक है, और ऐसा क्यों करेंगे वो मैंने आपसे अभी कहा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, फंक्शनल हेड्स अपना काम अच्छे से करें और एक कल्चर बने जिसमें ट्रस्ट एक दूसरे पर हो। ठीक, सो दीज वर सम ऑफ द केस स्टडीज दैट वी सॉ। देयर वर 5 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 10, 9, 8 and 7. These were our case studies. So whenever you are solving them, most of you have solved them very diligently also, and you have done a tremendous work. I've seen your papers, but some of you have chosen the hard lines, which you should never. बीच का रास्ता लेना है, हार्ड लाइन नहीं चुननी है। जहां आपको लगे कि ये सवाल पूछा गया है और इसमें कोई भी हार्ड ऑप्शन है तो हार्ड ऑप्शन को कभी भी नहीं चुनना है। ठीक है, चलो, now we are turning towards the static portion of this. We'll start from question 1. This will take some time, so that's why we did question number 7. Whenever you are solving your GS paper 4, try to do it or try to start it with the case studies. If you will not, generally case studies are a bit tiring. You need to read them and then you need to think about them. So that's why I always start with case studies, always, no matter what. There are 5 to 6 case studies in every paper. This is the simulator, so you might know that 7 to 12 are case studies only. So you do them first because you will be able to think more deeply and more wisely. Now the first question, both morality and ethics are crucial aspects of humanity and parting away from one another
affect society. Why is adhering to morality and ethics essential to leading a good life? Now in this case, first you need to understand or give an example of what is morality, and are you able to see it? What is morality and what is ethics? First you will carve out an difference or the common cause between them. So what is morality and what is ethics? Morality is nothing but personal beliefs shaped by culture and religion. जो आपकी संस्कृति और आपका धर्म आपके अंदर जो बिलीफ डालता है उसको हम कहते हैं मोरालिटी. एथिक्स क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, एथिक्स होता है रीजनड सोसाइटल और प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स. ऐसे सिद्धांत जिनको आपने सोच विचार करके बनाया है या प्रोफेशनली आपने उनको अपनाया है. मोरालिटी और एथिक्स में यही अंतर होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको और थोड़ा सा अच्छे से आप समझ पाओ कि जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये एक मॉरल वैल्यू है. आप बोल सकते हैं, आपको कोई दंड नहीं होगा अनलेस आप कोर्ट ऑफ लॉ में झूठ बोल रहे हो. आप झूठ बोलिए आराम से, आपको कोई समस्या नहीं होगी सोसाइटी में. लेकिन बोलना नहीं चाहिए का मतलब ये होता है कि आपके कल्चर में और आपके रिलीजन में इस तरीके के फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो आपको सिखाते हैं कि सर्टेन काम आपको नहीं करने चाहिए. वो कानून नहीं होता है बट वो मोरालिटी होती है, नैतिकता होती है, आपको रोका जाता है करने से. ऐसी जो भी वैल्यू है उसको आप कहते हैं मोरालिटी. वहीं एथिक्स क्या होता है कि काम पर रिश्वत नहीं लेनी चाहिए. काम पर रिश्वत नहीं लेनी चाहिए. आप ले सकते हैं लेकिन उसके लिए कानून है, पकड़े जाएंगे. अगर आप नहीं भी पकड़े गए तो भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि काम का एक सिद्धांत है और आप उस सिद्धांत को वायलेट कर रहे हो. आप समझ रहे हैं? जो धर्म में लिखा है वो नैतिकता है, और जो प्रिंसिपल रीजन करके, तर्क करके हमने बनाया है और जो वैल्यूज हमने डिसाइड की हैं कि हम सोसाइटी को किस तरफ लेकर के जाएंगे, उनको हमने कहा एथिक्स. तो झूठ मत बोलो मोरालिटी है, और घूस मत लो, रिश्वतखोरी मत करो, ये एथिक्स है. आप मोरालिटी और एथिक्स समझाएंगे. फिर जो क्वेश्चन किया गया है, दोनों जरूरी है. मोरालिटी और एथिक्स आर क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड पार्टिंग अवे फ्रॉम वन अनदर अफेक्ट्स सोसाइटी. कि अगर मोरालिटी और एथिक्स एक दूसरे से विपरीत दिशा में चले जाएंगे तो इससे सोसाइटी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा. साथ ही इनसे हमें क्यों लग करके रहना चाहिए, क्यों इनका पालन करना चाहिए, और क्यों एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें मोरालिटी और एथिक्स जरूरी है, ये सवाल है हमारा. तो पहले आप इस क्वेश्चन में मोरालिटी और एथिक्स समझाइए, उसके बाद बताइए कि अगर मोरालिटी और एथिक्स समाज से खत्म हो जाएंगे तो इसका नुकसान क्या होगा. पहला, ट्रस्ट का इरोजन होगा. कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा, है ना. जैसे हम अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें लगता रहेगा कि ये तो रिश्वतखोर होते हैं. हमें अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं रहेगा, और जब भरोसा नहीं रहता तो सिस्टम कोलैप्स कर जाते हैं. ये हम बहुत पुराने एग्जांपल्स में देख चुके हैं. जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था. वो क्यों आया था? फाइनेंशियल क्राइसिस आया क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा मंदी थी. मंदी बढ़ी भी धीरे धीरे, और जनरली हमने एक एथिक्स डिसाइड कर रखा है कि भाई बैंकिंग सिस्टम में उन फर्म्स को हम पैसा नहीं देंगे जो डिफॉल्ट कर चुकी हैं या डिफॉल्ट कर सकती हैं, जिनके अकाउंट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं. लेकिन इन लोगों ने क्या किया 2008 की मंदी के दौरान कि बहुत ज्यादा ऋण देना शुरू कर दिया, और अब ऋण दे दिया तो वापस नहीं कर पाएंगे, तो इससे पूरा राष्ट्र जो वो मंदी के लूप में फंस गया. आप देख रहे हो ट्रस्ट कैसे कम होता है, और ट्रस्ट की वजह से देश के देश कैसे डूब जाते हैं. इसीलिए फाइनेंशियल क्राइसिस आया था. दूसरा देखो, इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी. हमारी जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने भी तो यही किया था, क्योंकि उनके कोई मॉरल और एथिकल वैल्यूज तो थे नहीं. वो जिसको चाहते मार सकते थे, जिसको चाहे जेल में डाल सकते थे, जिसके साथ चाहे युद्ध करके उनको उनका राज्य हड़प सकते थे. तो उनके यहाँ इनजस्टिस भी था और इनइक्वालिटी भी थी. वो लोग जो उनके साथ हैं वो हमेशा ऊपर रहेंगे, और वो लोग जो उनके साथ नहीं है उनको हमेशा वो गरीब रखेंगे, त्रस्त रखेंगे. अगर आज की समाज में ऐसा हो जाए तो जो पॉलिटिकल पावर के साथ जाने वाले लोग हैं वो हमेशा अमीर रहेंगे, और जो गरीब लोग हैं वो कभी ऊपर बढ़ नहीं पाएंगे.
तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी और इनजस्टिस लगातार बना रहेगा, ये एक समस्या आएगी। अगला मॉरल एक्सट्रीमिज्म हो जाएगा। इसमें आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, जैसे हैंडमेड टेल है, मार्गरेट एटवुड का नॉवल है, उसमें वो इस प्रॉब्लम के बारे में और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए हमें प्रमोट करना चाहिए पर्सनल इंटेग्रिटी को, कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। उसके अलावा सोसाइटल हार्मनी का हमें बना करके रखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए जस्टिस एंड फेयरनेस। अब इसमें लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम है, जो एक स्पीच है, ऑटोबायोग्राफी भी है डिवाइडेड नेशंस की, ठीक है। साथ ही हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस को हमें रोकना चाहिए। तो एथिक्स और मोरालिटी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें हमें बना करके रखना चाहिए, उनसे जो समस्याएं होती हैं और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्यों ज़रूरी है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, कैन द कोड ऑफ कंडक्ट बी फ्रूटफुल इन इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, एक्सप्लेन विद स्पेशल रेफरेंस टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस इन इंडिया। भारत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो क्यों ज़रूरी है और क्या वो इंश्योर करती है दैट देयर इज लॉ इन द सोसाइटी। ऑल्सो स्पेशल रेफरेंस टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस इन इंडिया। हमसे ये कह रहा है कि भाई क्यों ज़रूरी है एमसीसी और क्या करती है एमसीसी। तो सबसे पहले तो आप उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं वो आप बता सकते हैं, फिर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में उसका यूज़ बता सकते हैं, जैसे टीएन सेशन ने उसको यूज़ किया था। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा, जैसे एमसीसी क्या कहता है कि अमुक तारीख को प्रचार नहीं करना, अमुक तारीख को वोट डालना है, अमुक तारीख को इन राज्यों में रैलियां नहीं हो सकती, तो अगर उन सबको ना करें तो होगा क्या, उससे होगा कि फ्री और फेयर इलेक्शन हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जिसकी सरकार है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वो उतनी ज़्यादा सभाएं कर सकता है, उतनी ज़्यादा जगहों पर घूम सकता है और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इलेक्शन इज नॉट अबाउट इन्फ्लुएंसिंग पीपल, इलेक्शन इज ऑल अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा, उसके बाद इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट करता है एमसीसी। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा तो इलेक्टोरली आप देश को आगे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि धांधलेबाजी होगी और धांधलेबाजी में तो हमेशा वही जीतता है जिसके पास पावर होती है ना। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करता है। हमारा संविधान सिर्फ एक वकीलों का पैराडाइज नहीं है, बल्कि उसमें मोरालिटी भी है। और आप जानते होंगे कि जब भी कानून बनाए जाते हैं तो कानून के दो इंटेंशंस होते हैं, एक तो उसका लीगल इंटेंशन होता है, एक मॉरल इंटेंशन होता है, जिसको हम उसकी आत्मा कहते हैं। जैसे ये कानून बना दिया गया कि कल से इस देश में शराबबंदी कर दी जाएगी, ठीक है, तो सारे देश में शराबबंदी लागू हो जाए। सरकार तो इस इंटेंट के साथ कर रही है कि कोई व्यक्ति शराब ना पिए, कोई नशा ना करे, कोई मरे ना, किसी के घर में समस्या ना हो और उनका बिल ना बढ़े ज़्यादा, कम से कम इमरजेंसी फंड्स का या बीमारी का। लेकिन कोई अनएथिकल आदमी हो, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखता है। वो देखेगा कि कोई नहीं बेच रहा, मैं बेच लेता हूँ, तो ब्लैक करना स्टार्ट कर देगा। वो अनएथिकल आदमी होता है, इमोरल आदमी होता है। यहाँ भी ऐसी बात की जा रही है कि आप पर्सनल इंटेग्रिटी बना करके रखिए, और जब पर्सनल इंटेग्रिटी बनाएंगे तो आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कानून की जो मॉरल वैल्यू होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि कानून को इतना मुश्किल करके लिखा जाता है, क्योंकि अगर उसको आसानी से लिख दिया तो कोई भी उसको मैनिपुलेट कर लेगा। एक एक शब्द चुन करके लिखा जाता है कि वो कहना क्या चाहता है, उसका मतलब क्या है। उसके बाद इसका मतलब क्या है का अर्थ इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी भी है ईसीआई की। अगर ईसीआई को हमने एक संवैधानिक संस्था बनाया है, तो संवैधानिक संस्था बनाने का एकमात्र रीज़न ये है कि वो किसी के सामने झुके नहीं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो करवाना चाहता है वो कर सके अच्छे से, न्यूट्रलिटी बनी रहे, किसी एक पार्टी के पक्ष में झुके नहीं। साथ ही जो वर्क्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं योगेंद्र यादव, मेकिंग इंडिया वर्क, उनका एक बहुत अच्छा काम है, उसमें भी यही कहा गया है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपना काम नहीं करता है तो इससे हम कोलैप्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि फिर तो वही होगा जो सरकार चाहेगी। सरकार तो हमेशा यही चाहती है कि उसी की सरकार आए, इससे उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा जिनको मिलना चाहिए। आई होप आप समझ गए। उसके बाद अगला है 2A। 2A क्या कहता है, द पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड इज द मोस्ट डेंजरस element to communal harmony and the secular fabric. In the context of given statement, what measures need to be taken to ensure peace in the country? ये सवाल ये कहता है कि हमारे देश में जो
पॉलिटिक्स है हेट्रेड की, वो बहुत खतरनाक है और हमारे जो सेक्युलर फ्रेमवर्क है उसको खराब करने का काम करती है। इस स्टेटमेंट के आलोक में आपको बताना है कि हमें कंट्री में शांति बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप बताओ कि जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड होती है उसको कैसे रोका जा सकता है। पहला तो आप मजबूत कानून बना दो, है ना, जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बनाया है, उसमें साफ साफ है कि अगर कोई इस प्रकार का कार्य करेगा तो हम उसे सजा याफ्ता करेंगे। साथ ही एजुकेशन और अवेयरनेस इसके बारे में बढ़ाओ, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स लगाए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा, और प्रमोट करते हैं बच्चों को कि वो कम्युनल हार्मनी के बारे में थोड़ा सा सीखें। मीडिया और सिविल सोसाइटी का काम है मॉरल, अभी तक पुलिसिंग की हम जिसकी बात कर रहे थे कि मॉरल बताएं कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। साथ ही मीडिया बताए, मीडिया इस प्रकार के रूमर्स ना फैलाए जैसा आजकल वो फैला रही है, तो रूमर्स से बचे। साथ ही बच्चों को इसके बारे में शिक्षा दे, कानून को मजबूत करे और सिविल सोसाइटी का रोल और ज़्यादा महत्वपूर्ण करे, है ना। जैसे हमने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बना रखा है, जैसे लैला मूवी के माध्यम से भी आपने देखा होगा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करे और न्यूट्रलिटी को और ज़्यादा बढ़ावा दे। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ाए जो कम्युनल किस्म का माइंडसेट रखते हैं, एक सेक्युलर माइंडसेट रखें और अपने देश को आगे बढ़ाए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के जरिए। साथ ही कम्युनिटी इंगेजमेंट बढ़ाना पड़े, जैसे अमन बिरादरी ट्रस्ट बना था, कब, 1992 के बाबरी विध्वंस के बाद बनाया गया था अमन बिरादरी ट्रस्ट। इसका काम था लोगों के बीच में हारमोनी को बढ़ाना। तो इलेक्शंस तो निश्चित तौर पर ऐसा काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं कम्युनल हारमोनी को ठीक करने के लिए। आगे आ जाओ। While artificial intelligence is facilitating decision making, it's pushing humanity as a whole towards cognitive debt and de-innovation. The question says that in the world or in the era of artificial intelligence, we are not able to make our decisions as we were doing earlier. Also, it is pushing the whole humanity towards cognitive debt. That means we are not able to understand what is in front of us. Also, we are not innovating something. We are asking our AI tools for everything that we used to do with our hands earlier. So now what has happened to us? Why are we so dependent on the artificial intelligence, and what are its problems? We need to comment on it. So firstly, we will see the AI's role in facilitating the decision making of the current humanitarian, which has mostly become a humanitarian crisis. Okay, so cognitive debt means, this word means cognitive debt, that we are not able to understand anything, and we are indebted to artificial intelligence to make us understand certain principles of our own society. This is a problem. Now, de-innovation is another thing. We are not discovering anything, like the book Age of AI by Henry Kissinger, Eric Schmidt and Daniel Huttonhosher tells that suddenly but surely we will not be innovating anything in the future, because we are not working towards it. We have made AI, will take help of the AI and will settle down. AI will make us so dependent on themselves that we won't think by our own. Okay. Now there are ethical issues associated with the AI, that it is biased and discriminatory toward certain institution, people, color, race. Lack of transparency, we do not know how it works. Black boxes, web series of the West world are the best examples for this. Then there are certain privacy violations which are done through it. Also, job displacement, many people will lose their job to the AI. Now, the question here was, do we need an ethical AI so that we are not cognitive debted or de-innovative? We can discover on our own and we can think of our own. This is the problem of this world in this AI generation. So first we can do, promote AI development which is responsible. Secondly, digital literacy should be enhanced and people should be literated towards artificial intelligence as soon as possible in their life, because when they are not able to understand the effects of AI, they can't innovate. Also, they can't understand. They'll always be indebted. Like this generation, you can call it millennials. Millennials are more indebted than the Gen Zs, because Gen Zs can think of their own.
They can use artificial intelligence, but they are not totally dependent on it. Okay. Then there is AI human collaboration that we can do. We can make them more humanitarian. The robots that we are creating these days, they can be AI driven, but humanitarian. Then there is regulation data. If we were to regulate artificial intelligence, it is a very big task. We can hardly regulate it, but we should. And by regulating it, we should make it more ethical and humanitarian. These were the issues. Now the next question is, being a public figure brings specific responsibility which cannot be shrinked at any point in the name of not being part of the onus. In the context of the statement, discuss the matter of crowd management and recent instances of stampede. Now, as you must have seen, there were many instances of stampede last year in India specifically. One of being in a religious gathering, another being during the Indian Premier League when the RCB won. Another stampede was in another religious gathering. So there were many examples: political, religious and sports. These three things were main, or you can say they were steering the stampedes. So what we can do and what were its problem? First one was planning and cooperation. We did not plan, like nobody plans the stampede, but we did not even plan our crowd management. So we should have done this crowd management by drones or by artificial intelligence or by public figures endorsing that please be planned and please be coordinated and do not run in any situation. This we could have done. Safety and self-awareness should be taught, and a pamphlet should be given to people what to do in a stampede case. In India, it is not possible, but we can actually start it and then we'll see the results. Ethical use of influence, like if there is a public figure for whom people are coming to see him, that person should say or should address the crowd and say, please don't run, because it will create a panic situation and a stampede eventually. This is what we can do. Now there is accountability and crisis response. All the crisis response, all the crisis management and accountability at the end of the day comes towards the people who's responsible, mainly the district management, or as we call it, district commissioner or the head of the police department. At the end of the day, they are responsible. But they did not start it, they could not end it. Now, recent instances were from Hathras Stampede 2024, where there was a religious gathering. Over 80,000 people came over there. Sorry, 2.5 lakh people came and 80,000 of them were caught in a stampede. Bengaluru Stampede, when RCB won the Indian Premier League, then there were people and they became part of that stampede and many people were killed. Now, Puri Rath Yatra 2025 stampede, 60 were injured and some of them, like 30 people, died. So this is very tragic and we should manage it. Now, what are the measures, how we can enhance it? What we can do to enhance it? Firstly, we can collaborate with the authorities and public figures. We can release speeches by public figures who say that please do not be a part of any stampede or miss crowd management. Secondly, we can do AI monitoring. We can do drone monitoring. We can deploy certain people who are AI specified people and they can monitor that particular area. Next, public education and communication. We should literate people about it and make themselves aware about it. Also communicate what we are going through and what situation can arise in this position. Legal accountability should also be there. People responsible for the stampede should be held accountable legally. District management cannot be held accountable legally, but there are certain authorities, like the BCCI held this stampede, you can say it. What was the need for a victory march? You could have easily done it in the stadium, you could have easily filled the stadium, but no, you were there on the road, people stood on both the sides of the road, and then there was a situation of stampede because there was no place to go. You should avoid these conditions. Then training and preparedness is another thing. We can teach our students in schools as well what condition can be there while stampede.
Justified restrictions in society help curb over liberty and thereby preserve the liberty of others. In context of the given statement, analyze the role of reasonable restrictions in the Constitution of India and substantiate with examples. This is the first question that is asking us about the example. Although there were not asked, we should tell always, all the time. हमें बताना चाहिए कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं. ये हमसे पूछ रहा है कि हमें बताना है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैसे होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर, और उसमें एग्जाम्पल से हमें उसको करना है. जैसे पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी के लिए हमें बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट केस. सेक्शन 144 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC का हमें यूज करना चाहिए, विच इज नॉट देयर रिसेंटली. साथ ही जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसमें हमने इसका प्रयोग किया है. उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. साथ ही पब्लिक मोरालिटी और डिसेंसी बनाए रखने के लिए हमें इन हथियारों का प्रयोग करना चाहिए. साथ ही दूसरों को नुकसान ना हो इसलिए हमें उन पर लिमिट लगानी चाहिए. और सोशल जस्टिस के लिए हमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका प्रयोग करना चाहिए. अब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है इनकी, जैसे हमने प्रवासी भारतीय संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में देखा, तांडव में देखा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में देखा. जैसे सोशल जस्टिस देते टाइम हमने आरक्षण को रखा, वैसे ही हमने पब्लिक मोरालिटी को और डिसेंसी को बनाए रखने के लिए फिल्मों में सर्टिफिकेशन देना स्टार्ट किया. अब कोई कह सकता है कि फिल्म तो हम कैसे भी बना सकते हैं, हमारा जैसा मन करेगा वैसे बनाएंगे, आप उसके ऊपर सेंसर क्यों लगाते हो, किसी व्यक्ति को उसको उसमें काट छाट करने के लिए क्यों दिखाते हो. तो हम क्या चाह रहे हैं, एक सोसाइटल मोरालिटी होती है, लोगों को मॉरल के साथ चलना चाहिए. अगर सोसाइटी में कोई मॉरल बचेगा ही नहीं तो ऐसे तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, है ना. इसीलिए हमने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो समाज को अलग अलग फिल्में दिखाता है, उसका काम है कि फिल्मों को देखे और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए अगर वो मोरालिटी को ख़त्म कर रही है तो. इसीलिए ज़रूरी है, वरना कोई आवश्यकता नहीं है. ऐसा क्या है जो आप नहीं देखते हैं, तो वो देख लेंगे तो क्या हो जाएगा. हो जाएगा जब कोई कलेक्टिव चीज़ हम पूरे समाज के तौर पे देखते हैं ना, वो गलत होती है. इंडिविजुअली आप कुछ भी करिए उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक समाज के स्तर पर पड़ता है. नेक्स्ट, अब इसमें एक और था कि आप क्या कर सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए. जैसे कोविड-19 पैंडमिक के दौरान हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई थी. वैसे तो आप देश में कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन कोविड के दौरान आपको नहीं घूमने दिया गया, आपके भलाई के लिए नहीं घूमने दिया गया, तो वो भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन था. साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में 2005 में हमने जो पर्सनल लिबर्टी है और पब्लिक हेल्थ है, दोनों को ध्यान में रखते हुए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का प्रावधान रखा है. तो ये कोई नई बातें हमारे लिए नहीं है. Next is the compassion for nature is so profound value when it comes to sustainable development and ecological balance. Comment. What is he asking? What is this question asking? This question asks about the compassion for nature. We Indians, or as we call it in the larger perspective, the Sanatan, has always cared about for the compassion for nature. There are many examples like promoting environmental conservation. Had we not been so much compassionate about the nature, we would never have allowed this legislation to pass in India. चिपको आंदोलन पहला एग्जाम्पल है. चिपको आंदोलन के बाद हमने बहुत सारे लगातार आंदोलन बनाए, साथ ही ऐसे कानून भी बनाए जो कंपैशन दिखाते हैं नेचर के लिए. दूसरा, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमने कानून बनाए, बायोलॉजिकल पार्क्स बनाए, है ना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाया, प्रोजेक्ट बायोडाइवर्सिटी लेकर के आए, प्रोजेक्ट टाइगर लेकर के आए. वो हमारे टाइगर्स के लिए दिखाता है कि हम कितने ज़्यादा उनको केयर करते हैं. साथ ही क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए 2016 में जो पेरिस में सम्मेलन हुआ था उसमें भारत शामिल हुआ, हमने पार्टिसिपेट किया. पार्टिसिपेशन के साथ साथ हमने उसमें एक्टिवली सपोर्ट भी किया. 2070 तक अपना कार्बन एमिशन ज़ीरो करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं. 70 गीगावाट का हमारा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो चुका है, उसको हम बढ़ा करके 200 तक लेकर के जाना चाहते हैं 2030 तक, और उसके आगे 2050 तक, 2047 तक तो हम चाहते हैं कि पूरा भारत कंप्लीटली सोलर एनर्जी के ऊपर या अल्टरनेट मीन्स ऑफ एनर्जी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए. अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, है ना. हम और अच्छा विकास कर सकते हैं, और ये कंपैशनेट फॉर द नेचर होना ही है. ये आप एग्जांपल इसमें देंगे. फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट को हम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. जैसे अरवारी रिवर रिस्टोरेशन है राजस्थान में, और डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट है 2020 की, वो भी हमें यही बताती है. अब जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं
जहाँ पर हम लैक करते हैं कंपैशन ऑफ नेचर के साथ में, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, जहाँ एक वेटलैंड है ना, वहाँ पर हमने राइनोज को बचाने के लिए और वेटलैंड को बचाने की कोशिश की है, लेकिन WWF 2023 की रिपोर्ट ये कहती है कि कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन जो है वो बेस्ट वे ऑफ कंजर्वेशन है। उसके साथ साथ हम अपना टूरिज्म बढ़ा सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, ये क्यों हुई? क्योंकि यूनियन कार्बाइड के कारण हुई, साथ ही हमारे जो पॉल्यूटेड वाटर है या जो पॉल्यूटेड सिटी है, या जहां हमने कंपैशन नहीं दिखाया नेचर के साथ, उसको इस तरीके से यूज किया अपने फायदे के लिए, देन द नेचर विल रिटेलिएट। नेक्स्ट इज एरे फॉरेस्ट इन मुंबई 2019, citizens protested not to cut the forest. एरे फॉरेस्ट was being cut down for a metro project, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं करने दिया उनको। कंक्लूजन क्या होता है कि बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट्स भारत में हैं, बहुत सारी ऐसी अप्रोचेस हैं जो हमें कंपैशनेट बनाती है, हमारे लेजिस्लेशंस ऐसे हैं जो हमें कंपैशनेट होना सिखाते हैं। नंबर 4 बी, enumerate the core elements of emotional intelligence that should be present in an individual। ये तो बहुत आसान सवाल है, डायरेक्ट ही सवाल है, आपको सिर्फ नंबरिंग करनी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कौन कौन से एलिमेंट्स एक आदमी के, एक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। तो ये जो किताब है साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस, उसी से आपको सारा मटेरियल निकालना है। वो आपने पढ़ा भी हुआ है, वो किताब आपको रेकमेंड भी की जाती है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं। पहला सेल्फ अवेयर। अगर आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना है तो आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, अपने बारे में पता होना चाहिए। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रोकना चाहिए। तीसरा मोटिवेशन, अब इसके आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे सेल्फ अवेयर होना क्या, सेल्फ अवेयर होना कि आपको अपनी जिम्मेदारियां, अपनी कमियां पता होनी चाहिए। दूसरा, आप उनके ऊपर काम करना आपको आना चाहिए, अपने प्रति सच्चा होना चाहिए। फिर काम करने का मोटिवेशन भी होना चाहिए, सहानुभूति भी होनी चाहिए, अपने से भी और दूसरे से भी, और सोशल स्किल्स होनी चाहिए। ये 6 चीज़ें हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर नेम कर लेते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही स्टैटिक सवाल है ये, है ना। सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा एम्पैथी, चौथा मोटिवेशन, पांचवा सोशल स्किल एंड वर्केबिलिटी ऑन योर ओन। ये 6 एलिमेंट्स हैं। अगर आपके अंदर ये 6 हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। और इमोशनल इंटेलिजेंस के अलग अलग जगहों से एग्जाम्पल आपको चुन करके देने हैं। मैं आपके ऊपर कोई एग्जाम्पल ऐसा थोपना नहीं चाहता जो आपने नहीं देखा हो, आपको नहीं पता हो, आपको नहीं आता हो, और मैं आपको बता दूं और आप वो लिखने चले जाएं। तो एग्जाम्पल्स आप सभी जानते हैं, एथिक्स में तो सब अपने अपने करते हैं, आपको भी अपने एग्जाम्पल्स लिखने हैं। जैसे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में अगर कोई एग्जाम्पल देना हो आपको, तो किसी मूवी से उठा लीजिए, किसी किताब से उठा लीजिए। जैसे गोदान से अगर आप उठाएंगे तो उसमें होरी को पता था कि वो बहुत समझदार आदमी नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो बाहर जा करके कोई कार्य नहीं कर सकता। वहीं जो होरी का पुत्र है वो अपने आप में बहुत सेल्फ अवेयर है ना, तो बाहर चला जाता है, कार्य भी करता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, वो थक बहुत जल्दी जाता है कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। सेल्फ रिफ्लेक्टिव भी नहीं है, मोटिवेशन भी नहीं है उसके अंदर, और एम्पैथी तो दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को जब आप उसके बुरे में छोड़ करके चले गए तो आप एम्पैथेटिक तो नहीं हो कम से कम, ठीक है, ये आपके अंदर होने चाहिए। फिर 5th क्वेश्चन हमारा है, द बेस्ट वे टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम इन द ह्यूमन वर्ल्ड इज फॉर ऑल साइड्स टू सिट डाउन एंड टॉक। दलाई लामा ये कहते हैं कि बातचीत करने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। इस स्टेटमेंट के आलोक में आपको बताना है कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं या आपका क्या मानना है। तो इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको तो सिंपली आपने ओपन अप करना था, है ना। एक स्टेटमेंट तो ये है, और फिर 5B जो है, इससे अगला जो क्वेश्चन है आप उसको भी साथ ही देख लें। ऑनेस्ट, चलिए कोई नहीं, बाद में कर लेंगे इसको, पहले ही कर लीजिए। द बेस्ट वे टू रिजॉल्व प्रॉब्लम इन ह्यूमन वर्ल्ड इज फॉर ऑल साइड टू सिट डाउन एंड टॉक। तो इससे होगा क्या बैठ के बातचीत करने से? पहले तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे इसके लिए, एग्जाम्पल तो आपको हर चीज़ के लिए एथिक्स में देना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट इससे दूर हो सकते हैं। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जैसे क्या, इंडिया चाइना, तिब्बत चाइना, भारत पाकिस्तान, इजराइल ईरान, अमेरिका कनाडा, यूरोप यूक्रेन रशिया, ये सारे कन्फ्लिक्ट्स दूर हो सकते हैं अगर हम बात करें। इसमें किताब का भी हवाला दे दे,
जॉर्ज मिशेल, मेकिंग पीस उनकी किताब का नाम है, तो उन्होंने इसी आइडिया को प्रमोट किया है कि हमें पीस को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, फिर सोशल कन्फ्लिक्ट्स भी दूर हो सकते हैं। आर्टिकल 15 इसकी बात करता है कि आप अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कास्ट बेस्ड, क्लास बेस्ड या रिलीजन बेस्ड कोई भी, तो वो अलाउड नहीं है। फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन इससे बढ़ सकता है, साथ ही पर्सनल और कम्युनिटी के जो डिस्प्यूट्स हैं वो सुलझा सकते हैं। तो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, हमने जो पंचायत समितिज बनाई हैं वो क्यों बनाई है, इसीलिए ना कि आपस में हम बैठ के बात कर पाएँ एक दूसरे से, क्योंकि जो लोग चुने गए हैं उनको गांव से ही चुना गया है, वो गांव में ही रहते हैं, तो वो लोग अगर साथ बैठेंगे तो अपने इश्यूज़ को ज़्यादा रिजॉल्व कर सकते हो, बजाय अगर वो कहीं और जाएंगे तो उनका समय भी खराब होगा, है ना। फिर वर्क प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी, जैसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में बताया गया कि क्रूशियल कन्वर्सेशंस जो किताब है कैरी पैटरसन की, वो ये कहती है कि 50% जो समस्याएं हैं मानव की वो खत्म हो सकती हैं अगर वो बात करना सीख जाए, अपने बातें कर ले, दूसरों से बता पाए। और आप देख ही रहे हैं, जब हमने अभी कहा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या और गांव की छोटी से छोटी समस्या सिर्फ बातचीत से हल हो सकती है, उसके लिए हमने फ्रेमवर्क भी बनाए हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो दलाई लामा सही कह रहे हैं हमारे विचार में, उसको आप ऐसे ओपन अप करिए। 4-5 एग्जाम्पल मैंने आपको कहे, आप उसको इलेबोरेट, इलुसिडेट जो करना चाहे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट इज अ गुड साइन ऑफ प्रोग्रेस। महात्मा गांधी ने कहा कि दूसरे से असहमत होना प्रगति का बहुत अच्छा साधन है, या बहुत प्रगति का बहुत अच्छा इंडिकेटर है, संकेतक है। तो सबसे पहले तो जब क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो इनोवेशन होगा आपके यहाँ, है ना, क्योंकि इनोवेशन ही बताता है कि आप ग्रो कर रहे हो। साथ ही जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो डिसएग्रीमेंट से आगे बढ़ती है। इफ आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू, इट डजंट मीन दैट आई एम एग्रीइंग विद यू, एंड इफ आई एम होल्डिंग दैट ग्रज, देन इन सम वे और द अदर आई विल हार्म यू। ओके। प्रमोटिंग सोशल रिफॉर्म, बातचीत करने से सोशल रिफॉर्म कैसे होते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने नॉन वायलेंट मूवमेंट को एक आर्म्ड रेबेलियन में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली सुलझाया जा सकता है अगर डिसएग्री हम एक दूसरे से होंगे तो, और पर्सनल ग्रोथ को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें 4-5 एलिमेंट्स हैं, वो मैं नोट कर देता हूँ आपके लिए। जैसे बड़े से शुरू करके छोटे पर आपको एथिक्स में हमेशा आना होता है कि बड़े स्तर पर क्या हो रहा है। तो जैसे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस, प्रमोटिंग सोशल रिफॉर्म्स, और रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स पीसफुली बाय इनहेंसिंग पर्सनल ग्रोथ। ये पॉइंट्स हैं इसके। अगला देखते हैं। कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आदमी की बौद्धिक जुगाली, आप उसको कहिए कि बौद्धिक जुगाली ही कह सकते हैं आप इसको, कि बौद्धिक जुगाली अल्टीमेट एम है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। ये B.R. अम्बेडकर ने कहा था। इन स्टेटमेंट्स को आपने प्रूव करना होता है ना, इलुसिडेट करना होता है, बताना होता है कि कैसे कैसे प्रूव किया इस लाइन को। जैसे मान लीजिए मैथ में एक सम होता है ना कि x² + y² या x + y होल स्क्वायर, इसको आप खोलते हैं तो एक सर्टन टर्म आती है ना, x² + 2ab + y²। तो आपने वैसे ही बताना है, ये भी xy² ही है। जैसे ये है ना, कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम। तो ये मान लीजिए कि ये परिणति है, ये सूत्र है, इस सूत्र को आपने खोलना है, और उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है उसको खोलने का। हमें से क्या बात करें, क्या बातचीत करें जिससे ये प्रूव हो जाए कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का अल्टीमेट एम जो है वो कल्टिवेशन ऑफ माइंड है, बौद्धिक जुगाली है। देखिए, अगर कल्टिवेशन ऑफ माइंड करेंगे तो एक काम तो होगा कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी और सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा। हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारा अंतिम उद्देश्य है पर्सनल ग्रोथ एंड रियलाइजेशन। तो अगर आप कल्टिवेशन ऑफ माइंड करेंगे तो उससे ये होगा। अब इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स आप जोड़ देना, जैसे किसी मूवी का दे दिया, किसी बुक का दे दिया, वो आप खुद को ढूंढना पड़ेगा, वो मैं आपको बता नहीं सकता बिकॉज सब लोग फिर आप वही लिखोगे आपने। मैं उम्मीद करता हूँ कि अलग अलग लिखे होंगे। सोशल जस्टिस प्रमोट होता है कल्टिवेशन ऑफ आइडियाज से, फिर डिसीजन मेकिंग प्रमोट होती है, और इनोवेशन और प्रोग्रेस एक साथ आती है। साथ ही जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको हम कल्टिवेशन ऑफ माइंड के जरिए बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बता सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं कल्टिवेशन ऑफ माइंड के लिए? पहला, यूनिवर्सल एजुकेशन।
सबको शिक्षा दें, सबको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएं, मिस इन्फॉर्मेशन से लोगों को दूर रखें और कल्चरल रिफॉर्म करते चलें। ये 4-5 चीज़ें हैं जो अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कल्टीवेशन ऑफ माइंड पर तो आगे बढ़ ही जाएंगे। चलिए फिर 6th है, Why is it essential to incorporate ethics in formulating and enacting laws? और 6th का B है, A public servant should have the aptitude and attitude to deliver effective public service. Analyze. बहुत आसान, बहुत सिंपल और बहुत अच्छे सवाल हैं। देखिए, पहला है 6th है, Why is it essential to incorporate ethics in formulating and enacting laws? कानून बनाते समय हमें एथिकल क्यों होना चाहिए, है ना, नैतिक क्यों होना चाहिए। मैंने आपसे अभी 2 टर्म समझाए थे कि एथिक्स और दूसरा मॉरल। तो ये कह रहा है कि एथिक्स क्यों आना चाहिए, इसने मॉरल नहीं कहा, इसने कहा एथिक्स क्यों आना चाहिए। एथिक्स मतलब क्या, जो आपने अपने वर्क प्लेस पर या कहीं भी जहां आपका फॉर्मल वर्ल्ड है वहां पर आपको एथिक्स क्यों लागू करने चाहिए, इनके ऐसे सेट ऑफ रूल जो हमने तर्क करके बनाए हैं। तो इसमें मुश्किल तो आपको कुछ होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पहला तो है जस्टिस इंश्योर करने के लिए। अगर मान लो मेरे पास कानून बनाने की शक्ति है और मेरे कोई मॉरल्स नहीं है। मॉरल का मतलब देखो क्या होता है, सिंपल। एथिक्स का मतलब समझो, एथिक्स का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई अधिकार है लेकिन आपके कुछ सिद्धांत भी हैं। जैसे आपका एक सिद्धांत है कि मैं किसी गरीब आदमी के साथ छल कपट नहीं करूंगा या किसी गरीब आदमी को धोखा नहीं दूंगा, है ना। तो ये आपका एथिक्स है काम करने का, आप वैसा कुछ नहीं करेंगे। तो अगर मान लो आपका ये एथिक्स है ही नहीं, आप कहोगे नहीं मेरा तो कोई एथिक नहीं है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, तो जो आपको पैसा देगा या जो आपको कोई और सुविधा देगा आप उसके साथ हो जाओगे। तो अगर आपका मॉरल एथिक्स कुछ भी नहीं है तो आप जस्टिस नहीं कर पाओगे, लोगों के साथ भी और अपने साथ भी। आप ह्यूमन राइट्स को नहीं बचा पाओगे, आप पब्लिक ट्रस्ट नहीं जीत पाओगे, आप हार्मनी नहीं बना पाओगे सोसाइटी में ऑल ओवर, कि सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से टर्मोइल पैदा हो गया लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। उसके अलावा अब्यूज ऑफ पावर इसे माना जाएगा कि आपके हाथ में कोई शक्ति हमने दी थी और आपने उसका गलत इस्तेमाल किया। अब आपने इसका एक एक एग्जांपल भी साथ साथ रखी, जैसे ह्यूमन राइट कैसे नहीं बचा पाएंगे। जैसे राइट टू एजुकेशन था, अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसके मन में पूर्वाग्रह होता कि छोड़ दो लोगों को पढ़ने के लिए और क्यों हमें पढ़ाना है, हमारी क्या आवश्यकता है। अगर कोई किसी के मन में पूर्वाग्रह होता, वो मॉरल ना होता व्यक्ति, किसी आदमी ने सोचा होगा ना कि इस देश का हर बच्चा पढ़ ले, तभी तो राइट टू एजुकेशन आया था। 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे के लिए भारत में शिक्षा फ्री है। वो क्यों है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा ना सोचता कि सबको बराबर शिक्षा दी जाए तो ये कानून आता ही नहीं। ये कानून आया, इसका मतलब कि कोई व्यक्ति मॉरल था ऊपर बैठा हुआ, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट जीतना, कि राइट टू इंफॉर्मेशन आया। अब सरकार में जो आदमी बैठा है उसको क्या जरूरत है आपको कोई इंफॉर्मेशन देने की, वो ना भी लाते, आपको तो पता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा वो लेके आए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि आप भी सरकार का हिस्सा बनो। क्यों? क्योंकि उनके कुछ मॉरल्स थे, उनके कुछ एथिक्स थे। तो आपको भी एक ऐसा ही प्रशासक बनना है जो मॉरल हो, जो एथिक्स हो, जो एथिकल हो। अगर आप वैसे नहीं हो पाए तो आप एक अच्छे प्रशासक तो नहीं बन पाओगे, पब्लिक का ट्रस्ट नहीं जीत पाओगे और पावर का गलत इस्तेमाल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, A public servant should have the aptitude and attitude to deliver effective public service. There are 2 terms. First is aptitude and second is attitude. So what is aptitude? Aptitude means skills. Do you possess all the skills that are required to finish your work that you have? आपको कोई काम करना है, मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको खेलना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, एथलीट बनना है, तो उसके लिए आपको एक स्किल चाहिए होती है ना, कि आप भाग सकें, दौड़ सकें, एक सर्टन लेवल पर आकर के अपने शारीरिक गतिविधि कर सकें। दैट इज कॉल्ड योर एप्टीट्यूड, दैट डू यू possess all the skills that you need or not. Then there is attitude. It is ethical commitment. अब किसी स्पोर्ट्समैन का एप्टीट्यूड तो है, उसका मन तो है, अभिवृत्ति तो उसकी उसमें है कि मैं खेलना तो चाहता हूं लेकिन मेरा एप्टीट्यूड नहीं है। अब कई लोग क्या करते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो अनएथिकल बिहेवियर है। वो स्पोर्ट्समैन तो बनना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर स्पोर्ट्समैन वाला एटीट्यूड नहीं है।
सिर्फ एप्टीट्यूड से भी कुछ नहीं होगा और सिर्फ एटीट्यूड से भी कुछ नहीं होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते आप में एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों होना चाहिए ताकि आप एक अच्छे पब्लिक सर्वेंट बन पाए। ठीक है, स्किल भी होनी चाहिए और काम करने का तरीका भी होना चाहिए। अब हमें बताना है कि क्यों होना चाहिए और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम मानते हैं कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से अच्छी होती हैं। तो पहला तो है एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपको हर चीज़ का विस्तार करना आना चाहिए और हर समस्या का समाधान करना आपको आना चाहिए। दूसरा, आप अपनी बात को संप्रेषित कर सकें दूसरों के लिए। सो इन दैट केस कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर मैंडेटरी फॉर अ सिविल सर्वेंट टू हैव। दीज आर द मैंडेटरी स्किल्स that they should possess. Then there is adaptability and innovation. You should always adapt yourself according to the situation and then innovate in that situation. If there is a right, you should adapt and enhance your capabilities accordingly. Then technical and domain expert, and also innovation is the one that I already told you, है ना। सो टेक ड्रिवन यू शुड ऑलवेज बी। चैलेंजेस क्या है उनके सामने कल्टिवेटिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के? एक तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म आ जाता है। हम कई बार स्किल्ड होते हैं, एप्टीट्यूड भी हमारा अच्छा होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतनी होती है कि हम लेट गो कर देते हैं लास्ट में। और लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड पॉलिटिकल प्रेशर एंड करप्शन। बेसिकली 5 ये जहाँ जहाँ सिविल सर्वेंट की बात आए आप देखोगे रेड टेपिज्म में क्या है कि फाइल अप टू डाउन होती रहती है। देन देयर इज अनदर थिंग विच इज यू कैन count as accountability or corruption and political pressure. So these are certain things that come under the ambit of challenges. Okay, then there was this German sociologist named Max Weber. He gave a rational legal for bureaucracy aptitude, and there was another book, The Difficulty of Being Good by Gurcharan Das. So in this he told the ethical duties of a civil servant. So this was our discussion about ethics paper 4 and All India Simulator test number 5 that we held. We are conducting more tests for mains examination. Be a part of it and be a part of our mains test series also. Thank you so much. We'll see you in another session.